Okay. हेलो 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 डॉक्टर एमगी शर्मा, आप म्यूट पे हाँ, हैं। हेलो हेलो, आर यू हेलो, हियरिंग मी? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ, आ रही है मैडम। हाँ। ओके मैडम, जस्ट आपका फेसबुक वाला स्टार्ट करना है सर अभी रिकॉर्डिंग। अभी रुक के करना है सर, जब स्पीकर आ जाए उसके बाद। स्पीकर साहब ही नहीं आए हैं। आपका कैमरा ऑन है क्या? हाँ, कैमरा ऑन है मेरा। दिख नहीं रहा। जस्ट मिनट। हेलो सर, ओके प्लीज ज्वाइन। ओके। हाँ जी सर, इट्स ओके। क्या हो गया? मैं पार्टिसिपेंट्स को एंट्री कर रही हूँ अभी, क्योंकि ओके, 8 बज मुझे गए। क्या करना है इसके बाद में एक बार बताना मुझे।
हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, मुझे इनिशिएट कब करना बता देना आप। हाँ जी। हाँ जी सर, आपका आवाज थोड़ी कट रही है। Just a minute. Hello, participants. We're just waiting for a speaker to join, and then we'll begin shortly. चाय भी नहीं। जो स्पीकर साहब है उनका थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, बिकॉज वो ही सिचुएटेड एट जम्मू राइट नाउ। तो अभी ही इज जस्ट ज्वाइनिंग इन 2 minutes. प्लीज कोऑर्डिनेट विद अस एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मनीष सर। Shall we start? सर द स्पीकर इज जस्ट ज्वाइनिंग, वो वेटिंग रूम में है, उनका कनेक्टिंग आ रहा है, मेरे में तो दिखा रहा है। तो अभी वो ज्वाइन कर ले, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अमित जी जो आज के स्पीकर है वो ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष जी आपका वीडियो नहीं आ रहा। आप वीडियो सेंड कर दिए ना नीचे में।
मनीष जी, आपकी साइड से कुछ नॉइज आ रही है, आप प्लीज देख लीजिए, आप खाली रूम में बैठे हैं।
Hello. Hello. Good evening, everyone. Yes, sir. Sorry, ma'am. There was some problem with my laptop or some network issue. Okay, sir. सर अभी आप लैपटॉप से आए हुए हैं या फिर फोन से? अभी मैं फोन से हूँ. अच्छा सर, ठीक है सर. ओके. Welcome, Dr. Saab. Hello everyone. I'm just entering a lot of the participants and we will just begin. Okay, so let's begin. Manish sir, please take the floor. Dr. Manish, are you here? Manish sir, let's begin. Yes sir. Welcome. Let's start. हाँ जी start करते हैं. Behalf of the Indian Nurserymen Association, I welcome all participants. I will privilege to warm welcome you all participants for today's webinar. This webinar series is organized by Indian Nurserymen Association. Thank you all for taking your time out of busy schedule and joining us for this important event. Now, to brief introduction of INA activities, I invite Ms. Prachi Kohil from Indian Nurserymen Association to tell us about the activities of Indian Nurserymen Associations. Over to Prachi. हाँ जी sir. Is my screen visible to all? Yes, ma'am. A very good evening to all the participants. I am Prachi Kohli. I would like to share with you all a short introduction about what INA is and what INA does. The Indian Nurserymen began its green journey in 1987, and for the last 33 years, we have been working as a tight-knit community. Our vision is to unite the horticulture community and work towards our goal of making a positive economic, cultural, and social impact. Our founder and first president,
late Sri Arjun Das Agarwal ji was the one who sowed the seeds of INA as we see it today. At INA, we are forever indebted to this man for his untiring efforts. This is a leadership board that has taken Sri Arjun Das Agarwal ji's agendas and dreams to new heights. Our current president, Shri Mr. Y.P. Singh ji, who was also 9th INA president, took charge in 2019, and under a short span of his leadership, we proudly announced that INA is growing not only nationally but also globally. The current leadership board is evident of the fact that INA leaders hail from all over the country, representing unity and diversity of India. Furthermore, we have our iconic green ambassadors from various industries supporting INA in its endeavors. INA is today India's largest NGO as a member of the National Horticulture Board with an extended network of more than 2 lakh farmers and cultivators. Therefore, INA represents plant breeders, greenhouses, distributors, nursery growers, retailers, interior and exterior landscapers, florists, and all other stakeholders across the spectrum of the horticulture industry. INA also works in a diverse range of thematic areas from PR and advocacy to publications and partnerships, from networking to events, exhibitions, fundraising, capacity building, and even study tours. INA worked extensively during the COVID-19 pandemic with the government ministries through video conferencing and put forward the problems faced by the nursery sector during the lockdown. INA was successful in categorizing plants and plant products under the essential items category and providing immediate relief to nurserymen across India. A great news for all our members and subscribers is that INA is now going global. I'm proud to inform you all that the INA family is now extended to Japan, Lebanon, Vietnam, South Africa, Netherlands, Italy, Colombia, amongst others. A star feature at INA is a Nursery Today magazine, which covers all news and updates related to the nursery and allied sectors and features industry experts, influencers about special news on the allied industries. You can now download a soft copy of our monthly magazine from the INA website. Apart from this monthly edition, INA also publishes a directory for horticulture industry every 3 years, and its 3rd edition is due this year. INA hosts India's largest international exhibition on ornamental plants, nurseries, landscape, floriculture, greenhouse, arboriculture, and light industry called the HortiPro India. INA, in association with the Delhi Tourism and Transportation Development Corporation Limited, organized the 33rd Garden Tourism Festival held March 2021 at the Garden of 5 Senses, New Delhi. The theme for this year was Green Balcony. INA was an associate partner and award sponsor at this event. Last but not the least, INA also started an initiative called Project Sampradhan, encouraging its wide network of members to contribute towards the PM Care funds. In view of the global pandemic, we have broken records in this department where we have collected more than 51 lakh rupees and donated towards the PM Care funds. With these amazing success stories, I thank you for your patience, and you can contact us on the given details for any queries or discussion. And I hope we have a wonderful session today. Over to you, Manish sir. Manish sir. Thank you, Ms. Prachi. We all know the quality planting material is one of the most important aspects in our horticulture industry. The production of quality planting material is very, very important for us with the time we realize, and this is the sector where we need a lot of focus. Today with us, one of the renowned person from horticulture sector, Dr. Amit Jasrodia sir. I welcome Dr. Amit Jasrodia sir. Dr. Saab has come from Division of Fruit Science, Sher-e-Kashmir University of Agriculture Sciences, Jammu.
Dr. Amish has 16 years wise experience in the research on fruit crops. He handled 5 research projects, published 25 research papers on his credit, and he wrote 2 books on various aspects of fruit crops. He guided 4 postgraduate students on research on fruit nutrition and planting material. I believe today we enjoy this wonderful and most time-tested topic of production of quality planting material for subtropical fruit crops. I welcome you, Dr. Amish, sir. Thank you, Over to sir. you, sir. Thank you, sir. Can I start now, sir? Please, sir. Oh, okay, thank you. Thank you, Dr. Manish, for giving an elaborate introduction about me. I take this opportunity to thank Shri YP Singh ji, President INA, Shri Mukul Tyagi ji, General Secretary INA, Shri Sachin Barmankar ji, Secretary and of Maharashtra chapter of INA, and Ms. Prachi for giving me this opportunity to be interacting with a very elite group of nurserymen, and I'm fortunate to be delivering this lecture in front of such a good elite people. So I'll start with my topic. I've been given the topic, the production of quality planting material in subtropical fruit crops. As you know, this is the main thing that determines the production related issues in production of fruit crops. Next, please. The problem with the major problems with the production of fruit crops is that we have inadequate availability of planting material, the quality planting material. This is the main factor. Then the most orchards, they are very old or they have lost their productive ages. So senility has got into those orchards. Then कुछ most of, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादातर जो हॉर्टिकल्चर है, इट इज रेन फेड. इवन हमारे जो मैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात करूंगा तो यहाँ पे तो 70% जो है वो रेन फेड एरिया है और लोअर प्रोडक्टिविटी है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस. No doubt we are second in the production of fruit crops in the world, but in most of the crops we have lower productivity. That is the production per unit area जो है वो हमारी कम है. Although grapes में हम leader हैं, in production of papaya, in mango production we are leaders, but we are lagging in overall productivity of fruit crops. और एक और फैक्टर है जो कि जो ट्रेंड मैन पावर है वो हमारे पास बहुत कम है. जो इस वक्त इंडिया का सिनेरियो है, इस वक्त हमारे पास, नेक्स्ट प्लीज, कोई 4,409 फ्रूट इंडस्ट्रीज हैं, उनमें से 1575 जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और 2,834 जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं. और एनुअल प्रोडक्शन जो है कि वो 1387 लाख फ्रूट प्लांट जो हैं वो इस वक्त जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं. और लेकिन डिमांड जो है वो हमारे प्लांटिंग मटेरियल की वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. और ज़्यादा जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है एरिया एक्सपेंशन अंडर फ्रूट्स, उसमें यही है कि जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है वो उसकी अवेलेबिलिटी जो कि रिलायबल नर्सरीज हैं वहाँ से बहुत कम है. सो these are the constraints, and some of the constraints are, what constraints are there in production of planting material. एक तो ये है कि जो अच्छी किस्में हैं, अच्छी जो वैरायटीज हैं और रूट स्टॉक्स, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है. नेक्स्ट प्लीज. और कुछ जगह पे जो है नर्सरी एक्ट्स जो हैं डिफरेंट स्टेट्स के, उन दे आर नॉट बीइंग कंप्लाइड विद. some of the nurserymen, they are just like traders, that they are getting from other plants from other nursery and
they are just selling away to the consumers. And then कुछ certification or registration mechanism जो है, it is not of that proper, although National Horticulture Board and other state departments, they are involved in this, and but then the standard production planting material procedures जो हैं वो भी follow नहीं हो रहे हैं. Then micro propagation of some important species. कुछ species में जो है अच्छा चल रहा है, जो कि soft wood plants हैं, जैसे कि banana है या strawberry है. इनमें जो है micro propagation protocols, they are working very good, but we are having problem in production of woody plants like walnuts, apples, or other woody plants. Next, please. Then our aim is that we have to go for production of high yielding, disease-free planting material of identified elite variety, जो कि varieties यहाँ पे जिनकी डिमांड अच्छी है और उनके प्लांट्स हमें तैयार करने हैं, और जो कि हाई यील्डिंग हो, जल्दी पैदावार देते हैं और वो डिजीज फ्री हो. तो इसके लिए जो हमारा रोल रहता है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट में नर्सरीज का, एक तो ये है कि प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली प्योर नर्सरी स्टॉक. सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जिस किस्म का पौधा चाहिए हमें, उसका जो प्योर स्टॉक है, उसके इट शुड बी ट्री टू टाइप, वो हमारे पास है कि नहीं है. और साइन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्राफ्टेड प्लांट है उसमें दो भाग होते हैं, साइन और स्टॉक. तो दोनों जो हैं दे शुड बी जेनेटिकली ट्रू टू टाइप. अगर हमें कि आम की ये दशहरी किस्म है, तो जैसा दशहरी जो कि हमें मदर स्टॉक पे है, वही उसी का आगे जो है मल्टीप्लाई करना है. देन एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, because of agencies like you, like INA is also going global, so there are chances to export the planting material, but we have to maintain our quality standards. Then employment generation is there. काफी लोगों को employment देता है, to the skilled, semi skilled और unskilled workers, सबको ये employment मिलती है. और नर्सरीज का ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर में भी बहुत ज्यादा रोल है, जो कि प्लांट्स हमारे which are adaptable to the arid conditions, they should be multiplied, and in the changing scenario of this global warming, the arid more of the area is going under arid plants. So this nurseries, they have a role in that also. So contents of my talk, they are classified in layout of nursery, propagation techniques of important fruit crops, then production of virus-free planting material, then what are some of the government schemes for establishment of this nursery. Now, in the physical resources, you see, the good nursery, it should have following components. Land is, of course, a very important and fundamental requirement, जिसमें कि हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि जो हमने सॉइल सेलेक्ट किया है, लैंड सेलेक्ट किया है, वो प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है, उसमें कोई पीएच, वी शुड, जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 तक होना चाहिए. मोर देन 8 और लेस देन 6 पीएच जो है वो नहीं होना चाहिए. और उसमें कोई सॉल्ट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए या वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए. तो इस तरह से हमें जो सॉइल है, इट शुड बी वेल ड्रेन्ड. वो ज्यादा भारी सॉइल नहीं होनी चाहिए. हैवी सॉइल्स जिनको कहते हैं, उनका टेक्सचर जो है वो लाइट टू मीडियम होना चाहिए, और ज्यादा सैंडी भी नहीं होनी चाहिए. इसी तरह इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए. लेबर की अवेलेबिलिटी जो है वो नर्सरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिसिटी शुड बी देयर, and most importantly, this road and transport, it should be well connected to the road transport system. Next, please. Next, man. Next. Then next, please. Then mother plants. This is very important feature of the nursery, model nursery. The mother plants, they play pivotal role, because if we will having a true type of mother plants, only then this successful nursery can be done. Then propagation structures in modern nurseries, they have very important role.
Then we have space for hardening of nursery plants. जो हम प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स में नर्सरी तैयार करते हैं उनकी हार्डनिंग के वो क्योंकि प्रोटेक्टेड कंडीशंस में वो तैयार होते हैं, तो उनको हमें हार्डनिंग के लिए एक जगह होनी चाहिए. स्टोर और ऑफिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफिस फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड स्टोर्स फॉर स्टोरिंग द थिंग्स. देन नेक्स्ट प्लीज. दिस इज द जनरल लेआउट की एक नर्सरी में क्या होना चाहिए. एक मेन रोड है, गेट जो है वो अच्छा काफी बड़ा होना चाहिए ताकि ट्रक या ट्रैक्टर जो है आसानी से उसमें आ सके. देन नर्सरी रोड्स होनी चाहिए सो दैट वी कैन मूव इजीली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द नर्सरी टू द अदर. और ऑफिस के लिए जगह कहाँ पे होनी चाहिए. लेबर शेड भी होना चाहिए, स्टोर रूम्स होनी चाहिए, व्हीकल शेड चाहिए. पॉटेड प्लांट्स कहाँ पे होनी चाहिए. देन सैपलिंग सीडलिंग्स कहाँ पे ग्रो करने हैं. एंड देन प्रोपगेशन और मिक्स चैम्बर्स कैसे होंगे. शेड नेट हाउसेस कहाँ होंगे, पॉली हाउसेस कहाँ होंगे, मदर बेड्स कहाँ होंगे. तो दिस इज द जनरल लेआउट ऑफ ए नर्सरी एंड इट शुड एन आइडियल नर्सरी शुड contain all these components. Next. Now we will talk about the most important component of nursery, that is the mother trees or mother plants. Mother plants जो हैं वो एक promising variety के होने चाहिए which are adaptable to that area. जो उस एरिया के लिए हमें ठीक जो हो वो हमें मदर प्लांट जो है हमें लेने हैं. और उसको सिलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि इट शुड बी जेनेटिकली ट्रू टू टाइप. मींस कहने का मतलब कि जिसका वो आगे पौधा तैयार हुआ है वो वैसा ही होना चाहिए. मींस वो क्लोन होना चाहिए उसका, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होनी चाहिए और वो हेल्दी होना चाहिए. वो इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिजीज. कोई डिजीज बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई कीड़ा नहीं होना चाहिए या उसमें कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए. और उसका हमारे पास पेडिग्री रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये कहाँ से आया है. कल को कोई पूछे कि फ्रॉम वेयर यू हैव गॉट दिस मदर प्लांट, तो वी शुड हैव द रिकॉर्ड ऑफ दैट एंड विद अस. देन इट शुड बी प्रोलिफिक. अच्छी बेयरिंग होनी चाहिए और रेगुलर बेयरर होना चाहिए. वो साल 10 साल जो है वो पैदा अपने फसल देना चाहिए. इसी तरह रूट स्टॉक्स भी इम्पोर्टेंट हैं इसके साथ साथ कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक तो डॉर्फिंग या सेमी डॉर्फिंग होनी चाहिए. बिकॉज अब नया हम कंसेप्ट लेके जा रहे हैं कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग इन फ्रूट क्रॉप्स. तो उसके लिए हमें जो है डॉर्फिंग और सेमी डॉर्फिंग रूट स्टॉक्स यूज होने चाहिए. और इम्पोर्टेंटली कि उस रूट स्टॉक की कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए विद द कमर्शियल वैरायटी. एंड दीज रूट स्टॉक्स ये जो है इनमें रेजिस्टेंस होनी चाहिए क्योंकि बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं बायोटिक स्ट्रेसेस और एबायोटिक स्ट्रेसेस. जैसा कि कुछ कहीं पे सॉल्ट ज्यादा होता है किसी जमीन में, या कहीं ड्रॉट प्रॉब्लम होती है, या वाटर लॉक्ड कंडीशंस होती हैं, या कहीं पे बीमारियां ज्यादा होती हैं. तो उसके भी रेजिस्टेंस जो है रूट स्टॉक में होनी चाहिए. और इट शुड हैव एक रूट सिस्टम जो है उसका अच्छा होना चाहिए. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हम रूट स्टॉक को इजिली प्रोपोगेट कर सकें, इस तरह का रूट स्टॉक होने चाहिए थ्रू सीड्स और थ्रू वेजिटेटिव मीन्स, जैसा भी वो है. अब मदर प्लांट्स की बात करें. नेक्स्ट प्लीज. इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो वैरायटीज हैं फॉर नॉर्थ इंडियन कंडीशंस. मैंगो में जो पॉपुलर वैरायटीज हैं दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अम्रपाली जो हैं यहाँ पे अच्छी चल रही हैं और अभी भी दे हैवंट लॉस्ट देयर पॉपुलैरिटी इवन दो सम न्यू वैरायटीज हैव एंटर्ड इनटू द एरिना. इसी तरह सिट्रस में किन्नू है, मौसम्बी है, ब्लड रेड ये भी स्वीट ऑरेंज है. इस तरह वेलेंशिया है, जाफा है, लेमन की पंत लेमन, साई शरबती, स्वीट लेमन. इसी तरह गावा में अलाहाबाद सफेदा, L49 बहुत पुरानी वैरायटीज हैं. अब रिसेंटली श्वेता ललित जो है ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ने रिलीज की हैं. इसी तरह हिसार से हिसार सुरखा है, पंजाब से पंजाब पिंक वैरायटीज जो हैं गावा की अभी रिलीज हुई हैं. इस तरह लीची में देहरादून, कलकतिया, शाही एक बहुत अच्छी वैरायटी और पूरा बिहार और ये एरिया जो है ये शाही जो है वहाँ पे बहुत पॉपुलर है. रोज सेंटेड बेदाना, देन स्वर्ण रूपा चाइना. इस तरह अनार की वैरायटीज हैं
पियर जो सब ट्रॉपिकल एरियाज में पियर भी जो है पंजाब बेल्ट में बहुत अच्छा हो रहा है, और इसमें पत्थरनाक, पंजाब गोल्ड, पंजाब नेक्टर, पंजाब ब्यूटी वैरायटीज अच्छा कर रही हैं। पीचीज में शान पंजाब, ये भी लो चिल वैरायटीज हैं जो कि फुट हिल्स में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इस तरह आंवला में वैरायटीज हैं, NA7 जो है बहुत अच्छा कर रही हैं। आगे नेक्स्ट प्लीज। कुछ वैरायटी जो है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे मैंगो में पूसा अरुणिमा है, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी वैरायटी है बिकॉज ऑफ इट्स कलर, और जो इसका टेक्सचर है, जो इसका पल्प है उसका अच्छा टेक्सचर है। पूसा सूर्या है वैरायटी, ये भी IRI न्यू दिल्ली से रिलीज हुई है, इसकी जो है स्टोरेज लाइफ अच्छी है। अरुणिका है, इसमें एंथ्राकनोज के प्रति जो है रेजिस्टेंस है। आंवला की गोमा ऐश्वर्या वैरायटी जो है ये रिलीज हुई है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर ने बीकानेर ने की है, ये अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। इसी तरह गोवा की ललित जो है पिंक पल्प की वजह से, बिकॉज प्रोसेसिंग में जो है पिंक पल्प की रिक्वायरमेंट रहती है। however nowadays white pulp these juices are also coming, but पिंक पल्प के जरूरत की वजह से ललित जो है अच्छा है। ग्रेप में पूसा नवरंग बिकॉज ऑफ इट्स रेड कलर एंड इट्स वेरी गुड फॉर जूस मेकिंग। लीची की स्वर्ण रूपा वैरायटी, लीची में क्रैकिंग की एक बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो स्वर्ण रूपा जो वैरायटी है ये टॉलरेंट है क्रैकिंग के लिए। पपाया में रेड लेडी, सूर्या और प्रभात जो है, ये जो वैरायटीज हैं दे आर ज्यादा प्रोडक्टिव हैं और अच्छी स्टोरेज लाइफ है इनकी। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ वैरायटीज हैं जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने रिलीज की हैं। नेक्स्ट प्लीज। दिस अंबिका वैरायटी है, अर्निका है, ये दोनों वैरायटीज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ ने रिलीज की हैं। उसके बाद पूसा दीप, पीछे स्लाइड है शायद, द प्रीवियस वन में पूसा दीपशिका, पूसा मनोरी है, ये IRI न्यू दिल्ली ने की है। मोस्ट ऑफ दीज वैरायटीज दे आर मिड सीजन, मिड टू लेट सीजन वैरायटीज, और दे आर रेगुलर बियरर्स एंड विगर जो है इनकी वो मीडियम विगर है, मीन्स ज्यादा बड़ा पौधा जो है इसका नहीं बनता है। इसी तरह पूसा श्रेष्ठ, पूसा प्रतिभा, अभी इन वैरायटीज की पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है, बट धीरे धीरे ये पब्लिक डोमेन में जो है ये वैरायटीज भी आ रही हैं। एंड देन बेंगलोर से कुछ मैंगो वैरायटीज रिलीज हुई हैं जो रेगुलर बेरर हैं, अर्का अरुणा, अर्का अनमोल, अर्का नीलीकरण। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो बेंगलुरु में है उस वहां से है। नेक्स्ट प्लीज। I think we have lost the screen. Sorry, sir. 1 second. Yeah, 1 second. Then कुछ guava की भी varieties जो हैं, latest varieties. This is just for the knowledge of the nurserymen that these varieties they can also be taken up for because the planting material इनका available होगा तभी जाके जो है ये public domain में पहुंच पाएंगी। अभी तो ये varieties जो हैं, जो institutes involved हैं, वो ही इनके जो है प्लांट्स तैयार कर रहे हैं, और वो शायद इतने ज्यादा क्वांटिटी में नहीं हो पाते हैं कि वो सभी को अवेलेबल हो पाए। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट मैम। All participants are requested to kindly keep themselves on mute. Next slide, ma'am. Next, please. Yeah. So these are some guava varieties. Punjab pink varieties. It has very attractive red skin and golden yellow color in winter season. And then Punjab apple color. It has crimson red color like that of apple. एक BNR बिही guava जो है ये भी बड़ा अच्छा है. It has बिग साइज गावा, और ये BNR नर्सरी एक प्राइवेट नर्सरी है, उन्होंने ये डेवलप किया है।
इसी तरह धवल वैरायटी जो है लखनऊ से डेवलप हुई है, ये भी अच्छी परफॉर्म कर रही है। लालिमा है, ललित है, श्वेता है। श्वेता शॉर्ट स्टेचर है, तो हाई डेंसिटी के लिए जो है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए ये बहुत सुटेबल है। अर्का अमूल्य है, अर्का किरण है, ये सब वैरायटीज बेंगलोर की हैं। हिसार से, HU हिसार से हिसार सुरखा है। तो दीज आर सम ऑफ द वैरायटीज ऑफ गुआवा। देन नेक्स्ट, सिट्रस में जो है नई वैरायटीज अभी एक PAU लुधियाना से जो है एक सीडलेस किन्नू जो है उन्होंने रिलीज किया है, क्योंकि किन्नू में जो है सीड्स ज्यादा होते हैं, इवन 10-12 सीड तक होते हैं जो नॉर्मल किन्नू है, बट इसमें जो है बड़े नेग्लिजिबल हैं, 2 से 3, सम केसेस में तो एब्सेंट भी हैं। तो ये सीडलेस किन्नू है जो लुधियाना में डेवलप हुआ है। ऐसे पूसा राउंड, ये न्यू दिल्ली ने स्वीट ऑरेंज की वैरायटी डेवलप की है। पूसा शरद, ये भी स्वीट ऑरेंज की है। स्वीट ऑरेंज मतलब जो मौसमी कैटेगरी के जो फ्रूट्स हैं, दीज फॉल अंडर स्वीट ऑरेंज। सॉरी। देन पूसा अभिनव, ये लाइम की वैरायटी है। पूसा उदित, ये भी लाइम की वैरायटी जो है दिल्ली से डेवलप हुई है। नेक्स्ट प्लीज। कुछ ग्रेप की वैरायटीज हैं, पूसा अदिति, पूसा त्रिशर, ये अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी हैं कि क्योंकि यहाँ पे ग्रेप में प्रॉब्लम ये आ जाती है नॉर्थ इंडिया में कि जब मॉनसून आता है तो जो लेट मैच्योरिंग वैरायटीज होती हैं उनमें रॉटिंग और अदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं। तो उस वजह से ये अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज जो हैं ये डेवलप की गई हैं और ये नॉर्थ इंडिया के लिए सूटेबल है। रेनफेड एरियाज के लिए भी कुछ क्रॉप्स हैं, वैरायटीज हैं। बेर में है, गुआवा में है, अनार में है, भगवा अच्छी वैरायटी है और काफी पॉपुलराइज हो रही है। अरक्ता है, भगवा का जो एरिल का कलर है जो अंदर सीड का है वो बड़ा अट्रैक्टिव है। अब ये रूट स्टॉक जो है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि वो रूट स्टॉक जो है वो अच्छा होना चाहिए और उसी पर डिपेंड करता है कि प्लांट कैसा परफॉर्म करेगा। मैंगो में कुछ रूट स्टॉक्स हैं, जैसे कुरुकन है, इसमें सॉल्ट रेजिस्टेंस है। उलोर है, ये विग्रस रूट स्टॉक है। विलय कोलम्बन, ये एक रूट स्टॉक है जो कि ड्वार्फ है। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में रुमानी है, ये भी ड्वार्फ है, तो उसके लिए ये हम यूज कर सकते हैं इनको। कुछ वर्ल्ड ओवर ये रूट स्टॉक है फॉर नॉलेज ऑफ द लिसनर्स कि ये डिफरेंट कंट्रीज में अवेलेबल हैं, इजराइल में, स्पेन में, न्यूजीलैंड में ये रूट स्टॉक जो हैं वो डेवलप हुए हैं और ये डिफरेंट सॉइल टाइप्स के लिए जो है कैन बी यूज्ड। सिट्रस में रफ लेमन जो कि सबसे पॉपुलर रूट स्टॉक है हमारा, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये फाइटोप्थोरा के जो फाइटोप्थोरा एक प्रॉब्लम है सिट्रस में जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है इसको, उसके लिए ये ससेप्टिबल है। मींस तो रंगपुर लाइम या ये जो है कंपैरेटिवली फाइटोप्थोरा रेजिस्टेंट हैं, तो उनको हम यूज कर सकते हैं। कैरिजो एक सिट्रेंज वैरायटी है जो कि स्वीट ऑरेंज और ट्राइफोलिएट ऑरेंज दो डिफरेंट जनरा को मिला के जो है ये बनी है। तो ये एक तो कोल्ड हार्डी है और फाइटोप्थोरा टॉलरेंट भी है। तो ये इट इज अभी पॉपुलराइज काफी हो रहा है ये रूट स्टॉक। इस तरह सौर फ्लाइंग ड्रैगन है एक रूट स्टॉक जो कि डॉर्फिंग रूट स्टॉक बताया गया है। क्लियोपेट्रा मैंड्रिन है, ये भी कोल्ड हार्डी है। देन अदर रूट स्टॉक ये सिट्रोमेलोज, ये दो डिफरेंट जनरा को क्रॉस करके बनाया है जो कि सिट्रस ट्रिस्टिजा वायरस और सिट्रस एक्सोकॉटिक वायरस और जाइलोपोरोसिस को रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। ये मैंगो रूट स्टॉक जो मैंने पहले आपको बताया। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। या ये बैक, वन स्लाइड बैक में, ये एलिमो एक
सिट्रस का बड़ा अच्छा रूट स्टॉक आया है जो कि फाइटोप्थोरा के और रूट रॉट के रेजिस्टेंस है। और इसमें देखा गया कि मैंड्रीन में जो है इसकी यील्ड जो है 2 से 2.5 गुना जो है बढ़ गई है। हम इवन 21 टन प्रति हेक्टेयर यील्ड जो है हम ले पाए हैं इस रूट स्टॉक को यूज करने के बाद, क्योंकि गमोसिस और ये फाइटोप्थोरा जो है ये फंगल डिजीजेज हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं सिट्रस कल्टीवेशन में। तो इस रूट स्टॉक से ये जो है टैकल हो सकती हैं प्रॉब्लम। ग्रेप इंडस्ट्री में भी रूट स्टॉक का बड़ा अच्छा रोल है, और यूज ऑफ रूट स्टॉक इन कॉम्बिनेशन विद प्रॉपर नेक्स्ट प्लीज in combination with this different training systems, जो प्लांट का आर्किटेक्चर है उसकी मैनेजमेंट से हम ग्रेप जो है ट्रॉपिकल कंडीशन, बेसिकली इट इज अ टेम्परेट क्रॉप बट इंडियन कंडीशंस में ट्रॉपिकल कंडीशंस में वी आर हैविंग द हाईएस्ट ग्लोबल यील्ड एंड हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट प्लीज। Then now next part of my topic, the propagation techniques. So I will be taking the propagation techniques which are popular of the commercial fruit crops only. Next please. Now this is first technique is the vegetative propagation. Although some fruit crops they are propagated through seeds, like this papaya, we have falsa is one fruit which is propagated through this seeds. But mostly the fruit plants they are being multiplied vegetatively through vegetative means, जैसे कि कटिंग्स होगी या ग्राफ्टिंग होगी या लेयरिंग होगी या बडिंग होगी। तो कटिंग जो है ये एक कुछ क्रॉस में जो है हम इसको यूज करते हैं और बड़ा इजी मेथड है। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स इन दिस मेथड। तो इसमें ग्रोथ हार्मोन्स का यूज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ कमर्शियल फॉर्मुलेशंस हैं जो राइजोपोन नेक्स्ट हॉर्टस या रूट मैक्स या हार्मोडिन इनको यूज करते हैं। तो आईपीए इनमें जो है सबसे नॉन जो रूटिंग हार्मोन है वो इंडोल बुटारिक एसिड हम यूज करते हैं, और ये एडवेंटिशियस रूटिंग में इसका बहुत रोल रहता है। तो ये कुछ और फॉर्मुलेशंस हैं, ये पाउडर फॉर्म में होता है। अब इनको यूज करने का भी 2 मेथड हैं। अच्छा नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हाँ ये नेक्स्ट, हाँ यस, सीड जर्मिनेशन में भी रोल है, क्योंकि जो रूट स्टॉक है वो हमें सीड से रेज करना है, या पपाया की जो प्रोपगेशन है वो सीड से होनी है। तो सीड प्रोपगेशन में जी ग्रोथ रेगुलेटर्स का काफी रोल रहता है। गुआवा सीड सख्त होता है तो उसकी जर्मिनेशन में भी प्रॉब्लम आती है, तो हम पोटेशियम नाइट्रेट का यूज करते हैं, या आंवला में जिब्रेलिक एसिड का यूज करते हैं 500 ppm। इस तरह पपीते के सीड के लिए हम सोडियम थायोसल्फेट या थायोयूरिया यूज करते हैं। बेर के लिए हम जीए का और सुक्रोज का कॉम्बिनेशन जो है ये करके बेर का सीड जर्मिनेट करना बड़ा मुश्किल होता है। इस तरह आंवला में भी जो जिब्रेलिक एसिड है इसका यूज हम करते हैं फॉर सीड जर्मिनेशन। नेक्स्ट प्लीज। अब जो ग्रोथ रेगुलेटर्स कुछ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए यूज होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन का ट्रीटमेंट देने के लिए हमें ऑक्सिन का ट्रीटमेंट देने के लिए हमें जो है 2 तरीके हैं। एक तो क्विक डिप मेथड कि हम उसको 2 से 5 सेकंड डिप करते हैं और निकाल के उसको हम प्लांट कर देते हैं। वो जो है उसमें कंसंट्रेशन जो रहती है इसकी आईबीए की वो ज्यादा रहती है, अराउंड 500 से 5000 ppm तक जो है, डिपेंडिंग अपॉन की रूट जो उसकी रूटिंग एबिलिटी है कटिंग की, इजी टू रूट है या इट इज डिफिकल्ट टू रूट। और दूसरा है
सोकिंग करते हैं हम इन IBA सॉल्यूशन, वो फॉर 8 आवर्स टू 10 आवर्स जो है हम उनको सोक करते हैं, लोअर पार्ट जो पार्ट हमें सॉइल में इंसर्ट करना होता है, और उसमें जो है वो जो IBA की जो वो है कंसंट्रेशन है वो कम रहती है, जैसे कि 50 से 100 या 150-200 ppm तक। तो देन लेयरिंग में भी इसका रोल रहता है कि हम IBA अगर हमने जब गुआवा में या लीची में लेयरिंग करते हैं, तो अगर IBA सॉल्यूशन उसमें लगाया हो तो रूटिंग जो है ज्यादा प्रोफ्यूज, ज्यादा घनी रूटिंग होती है। ग्राफ्टिंग में भी है इसका रोल। डॉर्मेंसी ब्रेकिंग के लिए भी हम जो है जिब्रेलिक एसिड का यूज करते हैं, रूट स्टॉक की ग्रोथ में भी बढ़ाने के लिए। प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, ये मतलब रूट पोर्शन में कुछ माइक्रोब जो कि एसोसिएटेड रहते हैं, और ये जो राइजोस्फीयर जो रूट पोर्शन जो होता है उसमें ये ज्यादा पाए जाते हैं। तो अगर हम उस सॉइल को यूज करें या उनको प्योरीफाई करके उन सॉल्यूशंस को हम यूज करें, तो रूटिंग जो है वो ज्यादा बढ़िया हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट यू सी, ये राइट साइड में जो बैक, 2 types of roots are there. On the left side this is without treatment, and this black one, and on the right side this is with treatment. तो रूटिंग जो है उसमें ज्यादा है। तो कहने का मतलब कि माइक्रोब्स का भी रोल जो है रूटिंग में बड़ा ज्यादा रहता है, और राइजोबैक्टीरिया they result in profuse rooting of cuttings. Next please, next yes। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या करते हैं कि आपको मालूम ही होगा कि हम एक बार का रिंग जो है वो निकाल लेते हैं, एंड वी रिमूव द फ्लोइंग पार्ट, जो छिलका है वो पूरी तरह से उतार देते हैं। 3 सेंटीमीटर जो है चौड़ा ये रिंग निकालते हैं। फिर उसके बाद मॉस ग्रास गीला करके उसको जो है प्लास्टिक के साथ लपेट के दोनों तरफ से बांध देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें। और ये लीची, लेमन और अमरूद में जो है ये ज्यादा किया जाता है। अनार में भी जो है इसको एयर लेयरिंग को करते हैं, और ये ज्यादा जो है मॉनसून सीजन में, रेनी सीजन में जो इसको किया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। ये बडिंग मेथड्स हैं कुछ, पीछे में एक पीछे बडिंग मेथड हैं कुछ। ये टी बडिंग मेथड, टी शेप काट देते हैं हम इसमें, और एक शील्ड बडिंग भी इसको बोलते हैं, क्योंकि जो बड है वो एक शील्ड की तरह हम रिमूव करते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं ऑन दिस फिगर टूवर्ड्स राइट, जो बड निकाल रहे हैं वो शील्ड शेप का रहता है। तो इसको हम उस टी शेप कट में इंसर्ट करते हैं, एंड वी टाई विद द पॉलीथीन स्ट्रिप्स जो 1.5 से 2 सेंटीमीटर चौड़ी रहती हैं, उनसे इसको रैप करके देन वी डू इट। नेक्स्ट प्लीज। ये इसमें बताया गया है कि किस तरह से आपने वो टी जो कट लगाया है उसमें कैसे इंसर्ट किया है आपने इसको बड को। और ये मोस्टली आंवले में करते हैं या बेर में करते हैं, और सिट्रस में जो है ज्यादा यूज होता है दिस किन्नू में या स्वीट ऑरेंज, मौसमी वगैरह में टी, इन्वर्टेड टी भी यूज करते हैं। मींस उल्टा टी बना देते हैं। उससे क्या है कि जो मॉइस्चर जो है वो एंटर नहीं करता है इसके अंदर, तो रॉटिंग या उसकी प्रॉब्लम जो है कम रहती है। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज अनदर मेथड, चिप बडिंग। ये जो है ये हम स्प्रिंग सीजन शुरू होते ही जो है इसको कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जो बड के साथ ए पोर्शन ऑफ द वुड इज आल्सो रिमूव। आप देख रहे हैं कि जब जो रूट स्टॉक में कट लगा रहे हैं उसी शेप का जो है हमें बड निकालना है साइन से, और इसको इंसर्ट करना है। और जो बड लेते हैं उसके साथ पोर्शन ऑफ वुड भी लेते हैं, इसलिए इसको हम अर्ली कर सकते हैं जब अभी
स्प्रिंग सीजन शुरू होने वाला होता है तो उस वक्त हम इसको कर सकते हैं फरवरी मार्च में। और ग्रेप में भी कर सकते हैं और टेम्परेट फ्रूट्स में जो है ज्यादा सक्सेसफुल है। इवन वॉलनट्स में भी इसको इस मेथड से हमें सक्सेस मिली है। नेक्स्ट प्लीज। एक्सक्यूज। देन पैच बडिंग, ये उन प्लांट्स में किया जाता है जिसकी चमड़ी मोटी रहती है, जैसा कि वॉलनट हो गया या जैक फ्रूट है या ये अपना इवन आंवला में भी इसको जो है सक्सेसफुली किया गया है पैच बडिंग को। इसमें क्या है कि एक पैच हम निकालते हैं 2.5 से 3 सेंटीमीटर का स्केयर का पैच बनाते हैं रूट स्टॉक में, जैसा कि आप देख रहे हैं रूट स्टॉक में ये ऑन द लेफ्ट। और राइट में कि बड कैसे, ये 2 ब्लेड्स होते हैं उनसे कट जो है वो देते हैं, तो एक रेक्टेंगुलर या जो शेप का हमें पैच निकाल के उसी तरह का उसी शेप का हमें रूट स्टॉक पे हम वो बनाते हैं और उसमें उसको इंसर्ट करके वी टाई विद द poly sheets. Next, please. This is here procedure how to insert the patch into the rootstock portion and then tying. Next, please. Next is the ring budding. Ring budding जो है इसमें हम एक पूरे जो रूट स्टॉक है वहां से पूरा रिंग रिमूव करते हैं, बार्क रिमूव कर देते हैं और रिंग पोर्शन का ही जो साइन से रिमूव करके उसमें इंसर्ट कर देते हैं। ये मोस्टली जो है हम आलमंड में जो या करते हैं या बेर में ज्यादा की जाती है। अगला नेक्स्ट ग्राफ्टिंग मेथड्स हैं। टंग ग्राफ्टिंग है, ये एप्रिकॉट पीचेस में करते हैं, ये फरवरी मार्च में होती है। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग है, क्लेफ्ट सा कट देके और उसके बाद इसको फिट कर देते हैं और सिमिलरली उसको साइन को भी आगे से शार्प पेंसिल की तरह घट के और उसमें फिट कर देते हैं। वेनियर ग्राफ्टिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है। नेक्स्ट, यस, हाँ दिस वन, ये बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है और मोस्टली हम मैंगो में जो है कमर्शियली ये यूज कर रहे हैं इसको। साइड ग्राफ्टिंग, जैसा कि आपको यहाँ भी उसमें विजिबल है कि किस तरह से कट जो है इसमें देते हैं, मैंगो में यूज करते हैं। अब वेनियर, ये मैंगो में वेनियर ग्राफ्टिंग के स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए? एक तो रूट स्टॉक जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, विग्रस होना चाहिए और हमें पॉली बैग्स में रेज करना है ताकि इजी टू ट्रांसपोर्ट हो, क्योंकि अगर ये फील्ड में रेज किए हों तो हमें अर्थ बॉल के साथ उसको रिमूव करना पड़ता है। एक तो वी लूज द अर्थ, बार बार हमें जो है जो जहाँ नर्सरी एरिया वहां से हम अर्थ लूज करते हैं और इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, ड्राइंग डैमेज जो है ड्यूरिंग ट्रांजिट ज्यादा है, इसलिए हमें पॉली बैग्स में इसको रेज करना चाहिए। रूट स्टॉक का डायमीटर 0.5 से 0.7 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये 3 से 4 महीने की एज का होना चाहिए। जो साइन है, साइन वुड है जो, और उसको यूज करने से जब हमने साइन लेना है उसको हमें डिफोलिएट करना चाहिए हफ्ता 10 दिन पहले। उसके बाद जो है उसको कट लेके और उसको साइड विनियर ग्राफ्टिंग जो है हमें करते हैं। और जो रूट स्टॉक का जो सिस्टम है वो अच्छा टैप रूट सिस्टम होना चाहिए। स्टेम की जो गर्थ है 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर तक की चाहिए और जो प्लांट हाइट, सेलेबल प्लांट हाइट है वो 60 से 70 सेंटीमीटर का प्लांट जो है वो हमें कंज्यूमर को देना चाहिए। नेक्स्ट 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 प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये एक सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग जो है हम पीछे में, हाँ ये मैंगो में हम करते हैं। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग मींस हम जो रूट स्टॉक है वो कम एज का भी यूज कर सकते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि 1 ईयर ओल्ड हो।
हम 6 से 7 महीने के रूट स्टॉक को यूज कर सकते हैं जिसकी वुड अभी सॉफ्ट ही है। और सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग इज बेसिकली वेज ग्राफ्टिंग, और ये जो है 7 से 9 महीने के रूट स्टॉक पे हम कर सकते हैं। और साइन का जो डायमीटर है वो 5 mm से लेके 9 mm तक होना चाहिए। और जो साइन की स्टिक की लेंथ है वो 15 से 18 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। और ये हमें ध्यान रखना है कि ग्राफ्टिंग यूनियन जो है जहाँ पे हम ग्राफ्ट कर रहे हैं वो जमीन से जो है वो तकरीबन 18 से 20 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोअर होगा 10 सेंटीमीटर पे या 12 सेंटीमीटर पे होगा तो वो रेन जब उसको प्लांट को हम ऑर्चर्ड में लगाएंगे, जमीन आगे लगाएंगे उसका बगीचा, तो वो उसका जो दिस यूनियन पोर्शन है वो इट कम्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल, वो नीचे जाता है तो उससे क्या होता है कि कोई डिजीजेज जो हैं वो ज्यादा उस पर अटैक करती हैं, क्योंकि दैट यूनियन पोर्शन इज द वीकेस्ट पोर्शन ऑफ द प्लांट, क्योंकि दो पोर्शंस को ज्वाइन करके बना है, तो इसलिए हमें जो है ग्राउंड से थोड़ा हायर लेवल पे रखना चाहिए, तकरीबन 9 इंच के हाइट पे उसको ग्राफ्ट करना चाहिए। देन नेक्स्ट, ये नेक्स्ट प्लीज। मैं थोड़ा लेट तो नहीं चल रहा हूँ? देन ये सिट्रस के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। No, sir. Okay, you are on time. थैंक यू सर, थैंक यू। सो ये सिट्रस के लिए कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स हैं जो कि हमें हम करते हैं। बडिंग मेथड यूज करते हैं, इसमें इन्वर्टेड टी यूज करते हैं, इन्वर्टेड टी बडिंग यूज करते हैं। इसमें जो साइन की एज है ये 5 से 6 महीने होनी चाहिए, और साइन का जो डायमीटर है वो 5 से 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें रफ लेमन या जटी खटी जिसको बोलते हैं वो रूट स्टॉक यूज करते हैं, या रंगपुर लाइम को जो है एज ए रूट स्टॉक यूज करते हैं। सिट्रस में जो है फाइटोप्थोरा, जैसा आपको मैंने बोला कि ये नर्सरी से प्रॉब्लम, सॉइल बॉर्न प्रॉब्लम है, तो अगर नर्सरी सॉइल में ये फंगस होगी तो चांसेस हैं कि स्प्लैशेस से जो है ये रेन वाटर से या इरिगेशन वाटर से ये बड यूनियन पे आ सकते हैं। तो इसलिए इसकी भी जो बडिंग हाइट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 9 इंच से ऊपर ही हमें रखनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। स्वीट ऑरेंज में भी सेम हमें जो है पैरामीटर्स जो हैं वो फॉलो करने हैं, और जो मदर प्लांट्स हैं उनको हमें डिजीज इंसिडेंस के लिए हमें इंडेक्स करना, मतलब देखना है कि वो फ्री हैं डिजीज से या नहीं, और ओनली डिजीज फ्री जो साइन वुड है हमें इस्तेमाल करनी है। तो इसलिए इंडेक्सिंग बहुत नेक्स्ट मैं डील करूंगा वो वायरस इंडेक्सिंग का। इसी तरह एसिड लाइम का ये हम नेक्स्ट नहीं पिछला से पिछला एसिड लाइम में जो है एयर लेयरिंग हम यूज करते हैं, और या सीड से भी जो है इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें पॉलीएम्ब्रेनी होती है, और न्यूसेलर सीड जो है वो 2 तरह के सीडलिंग होते हैं। एक जाइगोटिक जो फर्टिलाइजेशन से तैयार होके एम्ब्रियो से बनते हैं, वो जाइगोटिक सीडलिंग होते हैं, और जो न्यूसेलर होते हैं वो जो है वो वेजिटेटिव ही सीडलिंग होते हैं, मींस वो ट्रू टू टाइप होते हैं, तो उनको हम इसमें यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, ये कुछ टाइम बताए हैं डिफरेंट ऑथर्स ने, डिफरेंट वर्कर्स ने, कि किस समय में किस सिट्रस क्रॉप नेक्स्ट किस किस सिट्रस क्रॉप में किस वक्त जो है हम बडिंग या ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल हमें तैयार करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिट्रस में खास करके ये बड़ी प्रॉब्लम है, और हम जो हैं citrus is the third largest fruit after this mango and
but it is prone to many viruses. More than 15 type of viruses they are seen in this crop. तो इसमें ये है कि हमें कंटेनर नर्सरी सिस्टम जो है हमें यूज करना है। फील्ड में जो है हमें नर्सरी प्लांट्स प्रोड्यूस नहीं करने हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कंटेनराइज सिस्टम के लिए पॉटिंग मिक्सचर चाहिए। तो पॉटिंग मिक्सचर जो है वो स्टेरलाइज्ड होना चाहिए। तो ये किस तरह से कर सकते हैं? एक तो सॉइल सोलराइजेशन की हमने सॉइल जो पॉटिंग मिक्सचर के लिए यूज करना है, इसमें सॉइल, सैंड और FYM का मिक्सचर जो है मोस्टली लेते हैं। तो इट शुड बी प्रॉपरली स्टरलाइज्ड। तो उसको हम पॉली शीट से कवर कर देते हैं। तो पॉली शीट से हम इसको कवर कर देते हैं। और जब समर्स में जबकि टेम्परेचर नॉर्मली 45 डिग्री तक रहता है, उस वक्त हम और अच्छी तरह चारों तरफ से सील कर देते हैं ताकि अंदर जो है ह्यूमिडिटी बिल्डअप हो और अंदर का जो टेम्परेचर है वो इट इज रेज टू 55 टू 56 डिग्री। तो जो भी अंदर फंगस या जो स्पोर्स होंगे वो इससे मर जाएंगे। देन फ्यूमिगेशन करते हैं। कुछ फ्यूमिगेंट्स हम यूज करते हैं, जैसे कि ये बेसामिड करके आता है। तो या इवन हम फॉर्मलिन भी यूज करते हैं और इसको कवर कर देते हैं विद द पॉली शीट्स। और जब फ्यूमिगेशन से जो है वो जो स्पोर्स हैं फंगल या बैक्टीरियल वो मर जाते हैं। देन स्टीम स्टेरिलाइजेशन भी करते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ द सीड। अब हमें जो रूट स्टॉक के लिए सीड यूज करना है, इट शुड बी हेल्दी, इट शुड बी टेकन फ्रॉम मैच्योर फ्रूट, जो वेल राइपन फ्रूट है। लेकिन जो नीचे गिरे हुए फ्रूट्स हैं उनमें से हमें सीड नहीं लेना है, क्योंकि वो उसमें रॉट आ जाती है, बोट्राइटिस रॉट आ जाती है। तो वो ज्यादा जो सीडलिंग है आगे वो भी उसके डिजीज्ड होंगे। इसलिए हमें जो यूज करना है सीड वो सॉरी सर आप पानी या कुछ ले लीजिए फिर कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू मैम। तो सीड्स जो हैं, क्योंकि इसका जो सिट्रस का सीड है वो बड़ी जल्दी अपनी वायबिलिटी खो बैठता है। अगर वो ड्राई हो जाएगा तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इसलिए हमें जो सीड है इसका, उसको इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन जो है हमें इसको सोइंग कर देनी चाहिए। देन प्राइमरी नर्सरी जो है ये हमें ट्रेज में ट्रेज होती हैं 120 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर और जिसकी ऊंचाई तकरीबन 12-15 सेंटीमीटर रहे, उनको यूज करना है। उनमें सॉइल जो है उसके ब्रिम तक उसको सॉइल से भर के सीड को सो करना है एट ए डेप्थ ऑफ 1 to 1.5 सेंटीमीटर एट ए स्पेसिंग ऑफ 3 to 4 सेंटीमीटर। तो ये होगी प्राइमरी नर्सरी। उसके बाद 25-26 दिन के बाद जो है ये सीड निकलना शुरू हो जाते हैं और उनको जब 10 से 12 लीफ स्टेज पे वो आ जाए सीडलिंग, तो हम उसको सेकेंडरी नर्सरी मतलब पॉली बैग्स में ट्रांसफर कर देते हैं जिनमें उसको हमने बडिंग करनी। तो पॉली बैग में भी वैसे ही पॉटिंग मिक्सचर यूज करते हैं जो स्टेरलाइज्ड हो। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट और बड वुड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मदर प्लांट्स होने चाहिए वो वायरस इंडेक्स होने चाहिए, वायरस इंडेक्स होने चाहिए और डिजीज फ्री होने चाहिए। और क्योंकि वायरस जो है इसका वो फैलता है इंसेक्ट से, जैसे कि लीफ माइनर इंसेक्ट है इसका, सिट्रसिल्ला है, ये इंसेक्ट जो है इसको वायरस को फैलाते हैं। और जो बडिंग हम
इक्विपमेंट यूज करते हैं, बडिंग नाइफ यूज करते हैं, वो भी जो है हमें जब बडिंग करनी है उनको उससे पहले अल्कोहल में स्टेरलाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि वो भी वायरस फैलने का एक जरिया है। तो वायरस इंडेक्सिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं। सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस मींस एलिसा एक मेथड है, उसको यूज करते हैं हम। बायोडायग्नोसिस भी है कि हम कुछ ऐसी जो स्पीसीज हैं जो कि इंडिकेटर प्लांट्स होते हैं जो कि ससेप्टिबल हैं इन वायरसेस के लिए, जैसे कि एसिड लाइम है, वो ट्रिस्टीजा के लिए बड़ा ससेप्टिबल है, या ग्रीनिंग एक वायरस है बैक्टीरियम है सॉरी, जो कि स्वीट ऑरेंज उसके लिए ससेप्टिबल है। तो उन पे हम टेस्ट करते हैं, तो उससे जो है हमें पता चलता है कि ये वायरस है इसमें या नहीं। अब उसके बाद बडिंग और मेंटेनेंस ऑफ दिस बड, जो बडिंग कर चुके हैं हम, बडिंग जो है आपको पहले मैंने बताया कि उनको एक 9 इंच की हाइट के ऊपर बड करना है, और उसको प्रॉपरली जो है टी बडिंग ही करते हैं इसमें ज्यादातर। और उनको मेंटेनेंस कैसे करना है, हमें उसमें देखना है कि कोई इंसेक्ट ना आए, कोई उसका इंसेक्ट कंट्रोल जो है प्रॉपर, और मॉइस्चर जो है उसमें, उसके मीडिया जो है उसमें मॉइस्चर प्रॉपर मेंटेन रखना, और प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स लेने हैं कि इंसेक्ट्स को जो है हमें नहीं प्रोलिफरेट होने देना है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये कुछ टिप्स हैं नर्सरी वायरस फ्री और डिजीज फ्री नर्सरी करने के लिए। पहला तो कि जो नर्सरी साइट है वो सिट्रस ऑर्चर्ड से दूर होनी चाहिए क्योंकि जो ऑर्चर्ड कमर्शियल ऑर्चर्ड होंगे उनमें बीमारियां होंगी, तो वो बीमारियां वहां तक पहुंचने में जो है वो, या इंसेक्ट्स होंगे वो वहां नर्सरी साइट पे पहुंच सकते हैं। और जो नर्सरी है इट शुड बी रेज्ड इन कंटेनर्स। डिजीज फ्री नर्सरी हम जो है कंटेनर्स में ही रेज कर सकते हैं। फील्ड नर्सरी में कहीं सॉइल से प्रॉब्लम आ जाएगी, इरिगेशन वाटर से आ जाएगी, या कहीं साइड के खेत का पानी आ गया उससे बीमारी आ सकती है। तो कंटेनराइज्ड नर्सरी जो है अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशंस, वही एक मात्र तरीका है कि हम डिजीज फ्री नर्सरी जो है रेज कर सकें। स्टरलाइज पॉटिंग मिक्सचर हमें यूज करना है, और जो सीड है वो फ्रेश यूज करना है। देन जो ट्रेज हैं, ये देखिए नर्सरी में आपने रखा है, ट्रेज रखी है, तो वो ग्राउंड लेवल से 2 फीट ऊंची रहनी चाहिए, ताकि इरिगेशन वाटर से या रेन से जो है सॉइल बॉर्न जो पैथोजेंस हैं वो वहां तक ना ऊपर उछल उससे ना आ जाए। और हमें जब एक ध्यान रखना चाहिए, जब प्राइमरी नर्सरी रेज करते हैं उस समय जो अच्छी हेल्थ के जो सीडलिंग है उन्हीं को सेकेंडरी नर्सरी में हमें लेके जाना है। जो लोअर विगर के हैं या बड़ी ज्यादा विगर के हैं या बेंड हैं, कर्ल्ड हैं, उनको हमें वहां पे रिजेक्ट कर देना चाहिए। और जो सीडलिंग है उनको हमें ट्रीट करना चाहिए रिडोमिल के साथ या बेबिस्टिन के साथ बिफोर ट्रांसप्लांटिंग टू द सेकेंडरी नर्सरी। बडिंग हाइट मैंने आपको बोला कि 9 इंच से ज्यादा होनी चाहिए। जो नाइफ है उनको हमें स्टरलाइज करना चाहिए अल्कोहल में या सोडियम हाइपोक्लोराइड में। और जो मदर प्लांट्स हैं उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है कि इस पे कोई डिजीज तो नहीं आ रही है या कोई इंसेक्ट तो नहीं आ रहा है, ताकि वो हेल्दी रहेगा, तभी जो हमारी आगे नर्सरी प्रोपग्यूल्स होंगे वो भी हेल्दी रहेंगे। तो प्रोफिलेक्टिक मेजर्स मतलब डिजीज कंट्रोल मेजर्स जो है हमें वो करनी है। और जो विजिटर्स हैं नर्सरी में उनकी एंट्री खास करके जो मल्टीप्लाइंग एरिया है, मल्टीप्लिकेशन एरिया, वहाँ रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि उनके जूतों के साथ, पैरों के साथ जो है वो फंगस या डिजीजेस आ सकती है। नेक्स्ट प्लीज। इसी तरह ये लीची के स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ एयर लेयरिंग हम इसमें यूज करते हैं। तो एयर लेयरिंग के लिए जो शूट की एज है वो 10 से 12 महीने की
होनी चाहिए शूट, मैच्योरिटी जो उसकी है। और शूट का डायमीटर जो है वो 10 से 15 mm तक का शूट जो है मोटा होना चाहिए। और शूट की लेंथ जो है 25 से 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जब हम प्लांट को सेल करेंगे, लेयर से तैयार किया हुआ प्लांट, उसको हम उसकी हाइट जो है 30 से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये कुछ स्टैंडर्ड मापदंड हैं जो कि डिफरेंट क्रॉप्स के लिए तैयार बनाए गए हैं। इसी तरह अनार का है कि जो सेलेबल प्लांट है उसकी हाइट 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें भी हम कटिंग और लेयरिंग से दोनों से अनार को जो है करते हैं। अनार बड़ा इजीली रूट हो जाता है और कटिंग, हार्डवुड कटिंग जो है इसमें हम करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये है आंवला में हम पैच बडिंग जो है वो रिकमेंड करते हैं। और ये भी पॉली बैग्स में रेज करनी चाहिए। और रूट स्टॉक की जो उम्र है 5 से 7 महीने का रूट स्टॉक हम पैच बडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और साइन की जो एज है वो 3 से 5 महीने की होनी चाहिए। और साइन का डायमीटर जो है 8 mm से 12.5 mm तक होना चाहिए। और बडिंग हाइट इसमें भी वही 9 इंच से ऊपर ही होनी चाहिए। और जो सेलेबल प्लांट है उसकी हाइट उस वक्त सेल के टाइम पे 40 से 60 सेंटीमीटर का वो होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ये एक गोवा में पॉलीट्यूब मेथड से जो है एक मींस रूट स्टॉक वेज ग्राफ्टिंग करते हैं और उसको पॉलीट्यूब से कवर कर देते हैं। 10 से 15 दिन के बाद जब बड स्प्राउट करना शुरू कर देता है तो पॉलीट्यूब जो है उसको रिमूव कर देते हैं। तो इससे क्या है कि सक्सेस रेट बढ़ जाता है। 90% से ज्यादा प्लस ही जो है सक्सेस रेट इसमें आता है। ये कुछ एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है। ये भी हम छोटे से रूट स्टॉक पे अभी वो समझो कि रूट स्टॉक जो है वो निकल रहा है उसमें से, सीड में से, उसी वक्त हम इसको बडिंग कर देते हैं। और खास करके साउथ इंडिया में जो है इट इज़ वेरी पॉपुलर। मैंगो में इसको ज़्यादा करते हैं। और इसमें ये है कि विद इन 1 ईयर जो है आपका प्लांट तैयार हो जाता है। अदरवाइज हमें पहले रूट स्टॉक 1 साल का तैयार करना है, फिर उसको नेक्स्ट ईयर में बड करके, तो इट टेक्स मोर देन 1.5 ईयर टू मेक अ नर्सरी प्लांट। बट इस मेथड से हम विद इन 1 ईयर जो है एक प्लांट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, एक शूट टिप ग्राफ्टिंग जो है ये हाईली टेक्निकल मेथड है और इसको वी डू इट अंडर द माइक्रोस्कोप। इसमें क्या है कि जो टिप है शूट की, अगर प्लांट हमें पता है वायरस फ्री है और उसमें भी अगर हम उसका जो टिप है, मेरिस्टेम टिप बोलते हैं उसको, जो ऊपर का 0.1 से 0.15 mm बड़ा छोटा सा हिस्सा है वो, उसको हम लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली आप नीचे देख रहे हैं कि सीड से जो है हमने आर्टिफिशियल मीडिया में, पॉलीट्यूब में इसको सीड को उगाया, वो रूट स्टॉक तैयार किया। अब उस रूट स्टॉक में जो ऊपर का 1 mm का पोर्शन है उसमें हम वेज शेप कट देख के उसमें ये जो टिप है इसको हम इंसर्ट कर देते हैं और इट गोज एज ए प्लांट। और ये जो है अंडर माइक्रोस्कोप सारा ऑपरेशन होता है। और इसमें ये है कि सक्सेस रेट बहुत कम है, लेकिन इससे ये है कि 10 से 15% जो है सक्सेस मिलती है अगर हम बहुत एक्सपर्टाइज हैं। और इसमें क्या नाम, सिर्फ यही एडवांटेज है कि वायरस फ्री प्लांट जो है वो तैयार हो जाए होगा।
देन दिस इज माइक्रोग्राफ्टिंग। इसमें ये साइन जो है एक्सप्लांट जो है, इसमें भी क्लेफ्ट मेथड से ही है। उसको पहले हम इंसर्ट कर देते हैं, फिर Dr. Amit, please summarize if possible. ओके सर, ओके Summarize. ओके। देन आर्टिफिशियल मीडिया पे इसको ग्रो करते हैं, फिर उसकी रूटिंग जो है इंड्यूस करते हैं। ये भी एक मेरिस्टेम टिप कल्चर है, ये भी आर्टिफिशियल मीडिया पे रूटिंग करके आर्टिफिशियल मीडिया पहले शूट्स डेवलप करते हैं, उसके बाद शूट्स को काट के उनको रूटिंग मीडिया में डाल के, तो ये भी वायरस फ्री प्लांट जो है तैयार करने की विधि है। ये माइक्रो प्रोपगेशन कमर्शियल किस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसमें करते हैं। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हमारे। नेक्स्ट 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 प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये प्रोटोकॉल्स कुछ स्ट्रॉबेरी में, लाइम में जो है, वी हैव स्टैंडर्डाइज्ड देम फॉर माइक्रो प्रोपगेशन इन स्वीट ऑरेंज आल्सो। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। Then manage after propagation. Next please, next. Back में, back. Okay. हाँ, मैनेजमेंट ऑफ प्लांट्स आफ्टर प्रोपगेशन। उनको प्रॉपर लेबलिंग जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लेबल्स जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि ट्रांजिट में वो कहीं निकल ना जाए, तो प्लांट किस नाम का था वो पता ना रहे। उनमें पूरा प्रिंटेड रहना चाहिए कि ये किस वैरायटी का है, इंस्टीट्यूट का नाम रहे उस पर। और अगर पॉसिबल हो सके तो हम लोकल लैंग्वेजेस में भी जो है उस पर इंफॉर्मेशन दें। नेक्स्ट। देन प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स हैं कुछ, ये जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मॉडर्न नर्सरी। मिस्ट प्रोपोगेशन यूनिट्स एंड नेक्स्ट नेक्स्ट। ये जो है कंटिन्यूस बिल्डअप ऑफ ह्यूमिडिटी फॉर दिस रेजिंग ऑफ कटिंग्स, and this is how the mist is operates under the shade nets. Then next, this is the runner product. Next please, this is next runner back. ये रनर प्रोडक्शन जो है स्ट्रॉबेरी की अंडर शेड नेट्स, क्योंकि प्लेन्स में क्या है कि जब हम फ्रूट हार्वेस्ट कर देते हैं तो अप्रैल के बाद जो है बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो रनर प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो हम अंडर शेड नेट जो है रनर प्रोडक्शन स्ट्रॉबेरी में हम लेते हैं। अदरवाइज तो जो रनर प्रोडक्शन है वो टेम्परेरी एरियाज में होती है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट। सो दिस इज नेक्स्ट। ये प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स का यूज है प्रोपगेशन के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउसेज। तो नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए अंडर कंट्रोल, ये गवर्नमेंट स्कीम्स कुछ मैं आपसे, ये मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके अंडर जो है स्मॉल नर्सरी जो कि 1 हेक्टेयर तक की होती हैं, उसके लिए 15 लाख प्रति हेक्टेयर जो है मिलती है गवर्नमेंट से सपोर्ट जो, और इसमें 50% जो है सब्सिडी आपको मिलती है। उसमें 7.5 लाख जो है 1 यूनिट को सब्सिडी मिलती है, और इसमें 25,000 आपको पौधे जो हैं कम से कम तैयार करने होते हैं। इसी तरह हाईटेक नर्सरी और जो है वो 4 हेक्टेयर से ज्यादा की जो होती है, 4 हेक्टेयर की, उसके लिए 25 लाख प्रति हेक्टेयर जो है का सपोर्ट मिलता है। और इसमें सब्सिडी जो है बैक एंडेड सब्सिडी एट द रेट ऑफ 40% कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट बियर करती है। और इसमें ये रहता है कि 50,000 जो पौधे हैं आपको सालाना 1 साल के तैयार करने होते हैं। इसी तरह आपकी नेक्स्ट, आपकी जो नर्सरी है, प्रेजेंट नर्सरी है, आप देखते हैं कि उसमें कुछ फैसिलिटीज कम हैं, तो उनको अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट जो है इट गिव्स सपोर्ट ऑफ 10 लाख पर नर्सरी ऑफ 4 हेक्टेयर। इसमें भी 50% जो है प्राइवेट सेक्टर को 50% की सब्सिडी है। नेक्स्ट प्लीज। देन प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स आपको तैयार करने हैं, उसके लिए डिफरेंट
जैसे फैन पैड सिस्टम है, जो पॉली हाउस जिसमें फैन पैड सिस्टम फिटेड हो, उसमें 948 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करती है। इसमें कोई भी जो स्टेट डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर के साथ कांटेक्ट करके और अपना लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड विद द रिकमेंडेशन ऑफ योर दिस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हेड लाइक सरपंच एंड वो जो प्रधान होते हैं उनकी रिकमेंडेशन पे आप ये स्कीम्स अवेल कर सकते हैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ऑफ योर स्टेट। इस तरह RKVY के अंडर भी जो है डेवलपमेंट ऑफ नर्सरी अंडर दिस प्राइवेट सेक्टर, उसमें 7.5 लाख प्रति हेक्टेयर का जो है आपको सपोर्ट रहता है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसमें नर्सरी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेडेशन के लिए भी आप इसमें 10 लाख की सपोर्ट मिलती है। देन प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट रेट्स पे आपको सपोर्ट मिलती है। देन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 55% जो है सब्सिडी मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 55% की जो है सब्सिडी रहती है। उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम आप यूज कर सकते हैं, ड्रिप सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके डिफरेंट रेट्स जो हैं। देन इन द लास्ट आई वुड से दैट हमें ऐसा सिस्टम तैयार करना है कि नर्सरी रेगुलेशन जो है प्रॉपर हो, मदर ब्लॉक्स और गुड क्वालिटी रूट स्टॉक्स की जो है they should be made available to all the nurseries. Then nursery should follow the standardized propagation techniques. Then some procedure it has to be some found out for tracing the source of planting material from where the people are getting it. Then states should ensure that the new nurseries they are established near the vicinity of existing clusters so as to minimize the cost of transportation. Then virus indexing and disease indexing it's to be followed by all nurseries. Then import rules and regulations, they should be made simple. That's all. Thank you very much. I hope I finished within time. Thank you. Thank you, Dr. Saab. आज के वेबिनार द्वारा सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप्स में क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल के प्रोडक्शन की अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पार्टिसिपेंट को शेयर करने के लिए डॉक्टर अमित जसोड़िया साहब का हम हार्दिक धन्यवाद प्रकट करते हैं। डॉक्टर अमित सर शेयर with us valuable information about model nursery layout, propagation techniques, important root stocks, production of virus-free planting material, and guideline for nursery establishment. निश्चित तौर पे आपका मार्गदर्शन हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आज के वेबिनार में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। आपकी उपस्थिति IANA का उत्साह बढ़ाती है। सीड ऑफ फ्यूचर वेबिनार सीरीज द्वारा नर्सरी के विभिन्न आयामों पर मार्गदर्शन के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु सतत प्रयासरत इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री YP सिंह साहब, सेक्रेटरी श्री मुकुल त्यागी साहब, महाराष्ट्र चैप्टर के सेक्रेटरी मिस्टर सचिन ब्राह्मणकर साहब का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उनके प्रयासों से हमारे उद्यानिकी से जुड़े सभी को मार्गदर्शन मिल रहा है। आज के वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने के मैं IANA की टीम और मिस प्राची का मैं धन्यवाद देता हूं। आखिर में आप सभी के लिए ये ज्ञान, ये विज्ञान उपयोगी सिद्ध हो। शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद। गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you very much, participants, for being here today. We'll see you all next Thursday.